Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching my YouTube channel Wealth Wizards. So in this video, I will share you one trade जो मैंने Friday को लिया था. So that trade was for options buying. मैंने BPCL 510 call buy किया था. Okay, and I will share you my strategy and my thought process कि क्या था उसके पीछे and किस level पे मैंने entry ली और कैसे exit किया. So all that I am going to share in this video. But before going ahead, I want to give one disclaimer, okay? And please listen to this very carefully. So disclaimer ये है कि if you are completely new to trading and especially अगर आपने options में कभी trade नहीं किया है and आपने even options का नाम भी नहीं सुना हो maybe before this video, तो अगर आप वो इंसान हो then please don't start trading in options using this strategy, okay? Because ट्रेडिंग इन ऑप्शंस और फ्यूचर्स जिसको हम डेरिवेटिव्स मार्केट बोलते हैं दैट कैन बी वेरी रिस्की एंड स्पेशली ऑप्शंस. अगर आप ऑप्शंस बाई कर रहे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है बिकॉज वोलेटिलिटी इज़ वेरी हाई एंड बहुत तेज़ी से आपका प्रॉफिट भी हो सकता है बट एट द सेम टाइम उतनी तेज़ी से यू कैन लूज ऑल योर कैपिटल ऑल्सो. तो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट you do this, okay, until and unless you have some experience in options buying, okay. And if you want to learn options buying, then I would suggest that you do a proper legitimate course, okay. You can't learn this just by watching YouTube videos, right? So YouTube पे आपको बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से YouTubers हैं, they will claim that you can use their strategy and you will get 70% accuracy या 80% accuracy, but that is not true, okay. So just for getting views, I can also claim that this strategy is very efficient and you can start trading with that, okay, even if you are a beginner. But this is not true. I don't want to give false promises to my subscribers, okay. Options trading एक ऐसी चीज़ है जिसको मास्टर करने में बहुत टाइम लगता है एंड आई एम ऑल्सो इन द लर्निंग फेज. सो इन अ नटशेल, if you have never traded in options before, then please use this video just for knowledge purpose and don't start trading using this strategy that I am going to tell you, okay. पहले आप थोड़ा इक्विटी में ट्रेड करो, नॉर्मल स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, एंड एक बार आपको उसमें कॉन्फिडेंस हो जाए देन यू कैन लर्न अबाउट ऑप्शंस, ओके, इन डिटेल by doing some proper course, right? And in future I can also create a playlist on options, okay. उसमें थोड़ा dedicated effort लगेगा, it will not be covered in one video. So but अगर वैसी playlist हो जाती है then it will be a mini course. So let me know in the comment section if you want that I should create a mini course on options. तो ये एक डिस्क्लेमर हो गया फॉर न्यू ट्रेडर्स, फॉर बिगिनर्स इन स्टॉक मार्केट कि प्लीज़ अवॉइड ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, ओके. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस ट्रेडर और आपने ऑप्शंस में ट्रेड किया है ऑलरेडी, देन ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि ये स्ट्रैटेजी आप पहले बैक टेस्ट करो, आप पेपर ट्रेडिंग करो एंड वंस यू फील कॉन्फिडेंट देन डू इट एट योर ओन रिस्क and of course with proper risk management, okay. So that was one disclaimer that I wanted to give and now let's start with the video, okay. So यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको दिखा दूँ कि मेरी ट्रेड बुक में किस लेवल पे बाई किया था और किस लेवल पे सेल किया. BPCL 510 की कॉल मैंने बाई की थी एंड 510 की कॉल यहाँ पे मैंने सेल की. तो ये आपको दिखेगा बाइंग प्राइस, ओके. 24.75 वॉज द बाइंग प्राइस. ये ऑप्शंस, ये कॉल ऑप्शन का प्राइस है, राइट, 24.75. और ये कॉल ऑप्शन जब मैंने सेल किया तो उस टाइम उसका प्राइस था 36.5 और ये मैंने एक लॉट बाई किया. तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिख रही है कि 1800 क्वांटिटी. 927 को बाई किया और 1119 को सेल कर दिया, मतलब लेस देन 2 आवर्स का ट्रेड था. सेम डे बाई और सेल किया, मतलब इंट्राडे था. And I made a profit of around 21k. So 12 rupees you can consider on one share multiplied by 1800, okay. तो अभी देखने में this looks very promising कि 2 घंटे में 21,000 का प्रॉफिट, बट एट द सेम टाइम इट इज़ रिस्की बिकॉज अगर आपका डिसीजन गलत होता है एंड यू डोंट हैव रिस्क मैनेजमेंट, यू डोंट हैव प्रॉपर स्टॉप लॉस, तो 2 घंटे में सेम अमाउंट ऑफ लॉस भी हो सकता है अगर ये BPCL नीचे जाता उस टाइम, ओके. तो मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस कॉल, व्हाट इज़ दिस, राइट, एंड ये लॉट साइज क्या है, ऑल दैट. सो मे बी आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट कि what are the basics of options. But
The purpose of this video is to show a simple strategy that we can use to in options buying. Okay, and this is for people who are already aware of options, उन्हें basics पता है and थोड़ा बहुत उन्होंने options में trade किया है. Okay, but if you are completely new then don't worry, I will create a separate video on basics of options कि call क्या होता है, put क्या होता है. Okay, to put it in one single line, कि जब आपको लगता है, अगर हम ऑप्शंस बाइंग की बात करें, तो जब आपको लगता है कि मार्केट का मतलब इंडेक्स या स्टॉक, जब आपको लगता है वो ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाई करते हो, राइट. एंड आपको लगता है कि वो नीचे जाएगा देन आप पुट बाई करते हो. तो जैसे BPCL का स्टॉक है, अगर वो किसी दिन ऊपर जाता है, ओके, द स्टॉक गोज अप, तो उसका जो कॉल ऑप्शन होगा वो ऊपर जाएगा. तो अगर आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है तो उसमें पैसा बनेगा. एंड अगर BPCL का स्टॉक नीचे जाता है तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू घटेगी और पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी. तो अगर आपको लगता है स्टॉक नीचे जाएगा तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना है. ठीक है, मैं अभी खाली ऑप्शंस बाइंग की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑप्शन सेलिंग. तो अगेन, स्टॉक आपको लगता है नीचे जाएगा तो आपको पुट ऑप्शन बाई करना है. तो पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे स्टॉक नीचे जाएगा और कॉल की वैल्यू घटेगी. एंड अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी और पुट ऑप्शन की वैल्यू घटेगी. ठीक है, तो मेरा व्यू था कि BPCL ऊपर जाएगा तो इसलिए मैंने कॉल ऑप्शन को बाई किया, राइट. तो यहाँ पे मैंने आपको लेवल दिखा दिया, 24.75 पे बाइंग प्राइस है और 36.5 पे सेलिंग प्राइस है. एंड आई विल ऑल्सो शो यू द प्रॉफिट एंड लॉस. तो आप देख सकते हो रियलाइज प्रॉफिट वॉज 21.15K. तो थोड़ा चार्जेस एंड टैक्स कट करने के बाद इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 21,000. ओके, नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी. ओके, तो स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है कि आपको स्टॉक, लेट से हम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का हम ऑप्शंस बाई करना चाहते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैंने लगा लिया BPCL का चार्ट एंड उसके कॉल ऑप्शंस का चार्ट. नाउ BPCL का जो चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे ये ट्रेड था मेरा 2 फेब को. तो 1 फेब को आप देखो इसकी क्लोजिंग थी 507.75 पे. ठीक है, तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस था. अब आपको जब भी कॉल या पुट ऑप्शन बाई करना है तो आप डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के कॉल या पुट ऑप्शंस बाई कर सकते हो. ओके, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जैसे लेट मी ओपन नोटपैड. अगेन दिस विल रिक्वायर अ डेडिकेटेड वीडियो टू एक्सप्लेन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, बट आई एम टेलिंग यू इन वेरी शॉर्ट. तो अगर BPCL स्टॉक है हमारा और इसका प्राइस था लेट से 500, ठीक है, या 507 ले लेते हैं चलो, जो इसका क्लोजिंग प्राइस था. सो दिस इज़ द करेंट मार्केट प्राइस. ठीक है, तो इसके जो आसपास का प्राइस होगा कॉल या पुट के लिए वो होगा आपका एक स्ट्राइक प्राइस हो गया. जैसे आपका 510 एक स्ट्राइक प्राइस हो गया. ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस. सिमिलरली 520 एक स्ट्राइक प्राइस हो गया, 530 एक स्ट्राइक प्राइस हो गया. नाउ ये आपको मल्टीपल्स ऑफ 10 में दिखेगा, किसी किसी स्टॉक के लिए हो सकता है आपको मल्टीपल्स ऑफ 20 में दिखे. बैंक निफ्टी इंडेक्स की अगर बात करें, निफ्टी या बैंक निफ्टी, उसके लिए आपको हो सकता है स्ट्राइक प्राइस में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा अलग दिखे. यहाँ पे आई थिंक 10 का डिफरेंस है, 510 का कॉल है और 520 का भी आई गेस इट इज़ देयर. लेट मी चेक BPCL. 520 का कॉल इज़ देयर, यू कैन सी 530 का कॉल इज़ देयर. अगर मैं सर्च करूँ 528 का तो ये नहीं है. ओके, सो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये एक मल्टीपल्स में होता है, जैसे यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 10 में है. सिमिलरली ऑन द लोअर साइड, ठीक है, ऑन द लोअर साइड आपका हो गया 500, 490, 480. ठीक है, इस तरह. तो ये जो आपका सबसे नियरेस्ट होता है ये हो गया आपका एट द मनी. ये करेंट मार्केट प्राइस है और जो नियरेस्ट आपका स्ट्राइक प्राइस है इसको बोलेंगे हम एट द मनी. ठीक है, और जो दूर है ये मैं कॉल ऑप्शंस के लिए बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका आउट ऑफ द मनी. ओके, सिमिलरली 530, 530, 540 ये सारे आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे, मतलब वो प्राइस अभी और दूर है. एंड अगर हम इसके नीचे जाएं, ये स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाएं, तो ये वाला हो गया आपका इन द मनी, क्योंकि ये प्राइस ऑलरेडी आ चुका है तो ये इन द मनी है. ओके, करेंट मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो इसके नीचे वाले जो स्ट्राइक प्राइस होंगे वो इन द मनी होंगे. ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो बी इन द मनी. एंड सिमिलरली आपका 480, 470 ये सारे इन द मनी होंगे. ठीक है,
अगर मैं एक बेसिक रूल बताऊं, तो जब भी आपको डिसाइड करना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का लेना है, ओके, एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर देन यू शुड ऑलवेज गो फॉर एट द मनी, ठीक है, या एक स्ट्राइक प्राइस नीचे इन द मनी भी आप जा सकते हो, बट डोंट गो फॉर आउट ऑफ द मनी, बिकॉज जो आउट ऑफ द मनी होता है इसमें क्या होता है कि देर इज़ ओनली टाइम वैल्यू, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। जो हमारा इन द मनी है इसमें हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी एंड प्लस टाइम वैल्यू होगी, ओके। नाउ अगेन व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड व्हाट इज टाइम वैल्यू, सो उसके लिए भी आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, बट फ्यूचर में आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस। तो अगर आप ऑप्शंस के बेसिक्स सीखना चाहते हो देन प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो आउट ऑफ द मनी में जैसे मैंने बोला कि टाइम वैल्यू होती है, तो अगर एक्सपायरी, नाउ वी हैव वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, ठीक है, तो एक्सपायरी के दिन ऑप्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो अगर वो आपने आउट ऑफ द मनी लिया है और वो स्टिल आउट ऑफ द मनी है, जैसे लेट से आज एक्सपायरी है और बीपीसीएल का प्राइस अभी भी 520 से नीचे है, मतलब ये वाला प्राइस अभी भी आउट ऑफ द मनी है, तो उसकी खाली टाइम वैल्यू होगी और एक्सपायरी के दिन वो टाइम वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो आपका ऑप्शंस जो है डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा। एंड अगर आपने अगेन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया है, प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो यू कैन लूज़ ऑल योर कैपिटल। अगर आपका इन द मनी है तो एक्सपायरी के दिन क्या होगा कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी एंड टाइम वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो वो ऑप्शन ज़ीरो नहीं होगा कम से कम, ओके। बट दैट इज़ द रिस्क विद आउट ऑफ द मनी कि सिंस इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, तो जितने भी आउट ऑफ द मनी के आपके ऑप्शंस हैं आउट ऑफ द मनी वाले, तो उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी एट द डे ऑफ एक्सपायरी, वैल्यू बिकम्स ज़ीरो एट द डे ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। ऑप्शंस में आप रोल ओवर नहीं कर सकते जैसे आप फ्यूचर्स में कर सकते हो, तो एक्सपायरी के दिन आपका ट्रेड खत्म, ओके। एंड अगर आउट ऑफ द मनी है तो द ऑप्शन वैल्यू विल बिकम ज़ीरो, सो अगर आपने ऑप्शन बाई किया है तो दैट कुड बी अ कंसर्न, ओके। तो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया हाउ टू चूज़ द स्ट्राइक प्राइस एंड ऑल। तो BPCL का 507 क्लोजिंग था ऑन 1 फरवरी, तो मैंने उसके आसपास 510 मतलब एट द मनी का कॉल ऑप्शन लिया, ठीक है। नाउ मैंने क्यों लिया, किस लेवल पे बाई किया एंड व्हाट वाज द रीज़न। सो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगेन अगर आप ऑलरेडी ऑप्शंस में थोड़ा बहुत ट्रेड कर चुके हो देन ओनली यूटिलाइज दिस स्ट्रैटेजी एंड दैट टू आफ्टर प्रॉपर बैक टेस्टिंग, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि स्टॉक या चाहे इंडेक्स, ठीक है, दिस स्ट्रेटजी विल वर्क फॉर स्टॉक एज वेल एज इंडेक्स। इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी आप ऑप्शंस बाई कर सकते हो, ओके, राइट। तो यहाँ पे आपको दो चार्ट लगाना है, यू कैन यूज़ एनी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मैंने काइट पे लगाया हुआ है BPCL का चार्ट आवरली टाइम फ्रेम में, और सेम जो आप जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपको लेना है तो उसका कॉल ऑप्शन का चार्ट, और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो सिंपल यूजिंग RSI स्ट्रेटजी। नाउ मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था ऑन RSI, सो प्लीज़ वॉच दैट इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड, एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल येट वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी इफ़ यू वांट टू ट्रेड, चाहे आपको स्विंग ट्रेडिंग करना हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करना हो, ऑप्शन बाइंग करना हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना हो। सो दिस सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ RSI इज़ वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पे आवरली चार्ट पहले हम देखेंगे BPCL का, जब ये 60 को क्रॉस करेगा और एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो इसको हम बोलेंगे अलर्ट कैंडल, ठीक है। RSI अभी आप देखो 60 के ऑलमोस्ट क्लोज था और यहाँ पे इसने 60 को क्रॉस किया, ठीक है। तो अगेन ये अनकन्वेंशनल RSI अप्रोच है, 60 और 40 लेवल। तो 60 के ऊपर हम बोलेंगे बुलिश, 40 के नीचे बेरिश और 40-60 के नीचे साइडवेज। तो एक बहुत ही हाई लेवल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ कि 60 के ऊपर अगर स्टॉक जा रहा है तो मतलब बुलिश, बुलिश का मतलब हमें कॉल खरीदना है, कॉल बाई करना है। अगर 40 के नीचे जा रहा है मतलब क्या है, बेयरिश। तो बेयरिश में क्या होगा, जब स्टॉक नीचे जाएगा, बेयरिश मतलब स्टॉक नीचे जाएगा, नीचे जाने की टेंडेंसी है, उस केस में क्या होगा कि कॉल की वैल्यू घटेगी, तो हम कॉल बाई नहीं करेंगे बट पुट बाई करेंगे, क्योंकि स्टॉक नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी, ओके। तो 60 के ऊपर कॉल बाई करना है, 40 के नीचे पुट बाई करना है, मतलब ये एक मोटा मोटी रूल हो गया। अदर देन दैट देर आर many things that you need to look for while trading in options। तो सिर्फ RSI के बेसिस पे भी नहीं करेंगे, ओके। बट यहाँ से आपको एक
कन्विक्शन मिलेगा कि दिस इज़ लाइकली टू गो अप और मैं कॉल ऑप्शंस में ट्रेड कर सकता हूँ। ओके, सो एक सिग्नल आपको मिला, ये अलर्ट कैंडल मिली। सेकंड आपको देखना है वॉल्यूम। तो आप देखो पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम जो है, ये आवरली चार्ट है, तो पिछले कुछ कैंडल्स में आप देखो कि वॉल्यूम कम था और ये वॉल्यूम दिस इज सिग्निफिकेंटली हाई, तो हाई वॉल्यूम भी है। और एक चीज़ और, अगर आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में पता है, सो ये एक स्क्वीज आउट है ना। बॉलिंजर बैंड इज़ अ वॉलेटिलिटी बैंड, ये इंडिकेट करता है कि कितनी वॉलेटिलिटी है स्टॉक में। सो यहाँ पे ये स्क्वीज आउट हुआ, दिस इज ऑल्सो अ बुलिश सिग्नल, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज आउट। यहाँ तक आप देखो कि एक स्क्वीज था, मतलब दिस बॉलिंजर बैंड वॉज इन अ नैरो चैनल, एक नैरो चैनल था और उसके बाद ये सडनली ओपन हो गया ये चैनल। सो दिस इज कॉल्ड बॉलिंजर बैंड स्क्वीज आउट। तो यहाँ पे हमें एक सिग्नल मिला कि BPCL इज लुकिंग गुड ऑन आवरली टाइम फ्रेम। तो हम लगाएंगे BPCL का कॉल ऑप्शन का चार्ट अब 15 मिनट चार्ट। ठीक है, आपने ये देख लिया आवरली चार्ट, BPCL के आवरली चार्ट पे ये RSI 60 है, वॉल्यूम है, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज आउट है और ये अलर्ट कैंडल, एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन रही है। ठीक है, फिर हम जाएंगे इसके कॉल वाले चार्ट पे और यहाँ टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट करना है 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखो कि RSI जब 60 को क्रॉस करे, मतलब वहाँ पे मुझे एंटर करना है। ठीक है, वॉल्यूम भी आप देखो, इफ़ यू कंपेयर विथ प्रीवियस बार्स, यहाँ पे वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली हाई है। ये एक और इंडिकेटर है मैकडी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बार्स ये अबव दिस लेवल बन रहे हैं एंड दिस मैकडी लाइन इज़ अबव द सिग्नल लाइन। तो ये आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो अदर देन RSI टू कॉम्प्लीमेंट दिस। सिर्फ RSI से इट विल बी अ मोर रिस्की, तो RSI से आपको एक कन्विक्शन मिलेगा बट यू हैव टू ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट दैट विद अदर इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे मुझे एक अलर्ट कैंडल मिली, ओके, और यहाँ पे मैंने बाई किया। नाउ मेरा लेवल क्या था, अराउंड 24 आई बिलीव। ठीक है, तो अगेन ये अलर्ट कैंडल है। अब इसके बाद जब ये नेक्स्ट इसका हाई ब्रेक होता है, ठीक है, अलर्ट कैंडल के बाद यू हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन। तो इसके हाई के ऊपर जब ये जाएगा तब आप बाई कर सकते हो, बट इफ़ यू आर अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस्ड तो आप इस अलर्ट कैंडल पे भी बाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 24 के लेवल पे बाई किया। ठीक है, तो ये मेरा एंट्री लेवल हो गया, राइट। एंड आपको स्टॉप लॉस भी रखना है, तो मैंने स्टॉप लॉस आई थिंक रखा था इसका लो, अलर्ट कैंडल का लो क्या है 19 रुपीज़। तो 24 मेरा बाइंग प्राइस था, एंट्री प्राइस, एंड 19 जो इस कैंडल का लो है वो मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, मतलब 5 रुपये का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे एक लॉट में 1800 क्वांटिटी है, मतलब अगर लॉस होता तो 1800 इंटू 5 दैट इज़ 9000 का लॉस था। ठीक है, एंड इसमें आपको क्या करना है कि यू हैव टू बी अलर्ट एंड यू हैव टू ट्रेल द स्टॉप लॉस। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार स्टॉप लॉस सेट कर दिया एंड दैट्स इट, क्योंकि होगा क्या कि ड्यू टू वॉलेटिलिटी कई बार ऑप्शंस आपका ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे आ जाएगा, तो आपका सारा प्रॉफिट क्विकली वाइप आउट हो जाएगा। एंड आप अगर आप किसी और काम में बिजी हो गए तो विद इन 1 आवर ये अगेन सेम लेवल पे आ सकता है, ऊपर जाके नीचे आ गया। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बी अलर्ट एंड आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या तो लगा सकते हो, या इफ़ यू आर एबल टू मॉनिटर दिस, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाए आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री की 24 के लेवल पे जब ये अलर्ट कैंडल बन रही थी, ओके, एंड RSI ने 60 को क्रॉस किया। तो आइडियली यू कैन होल्ड दिस टिल RSI इज अबव 60। तो RSI अगर 60 के ऊपर है मतलब बुलिश, और ये अगर 60 को ब्रेक करता है तो वहाँ हमें एग्जिट करना है। तो आपको एंट्री पता चल गई, आपको एग्जिट पता चल गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री की राइट एट दिस लेवल, लेट से कि ये कैंडल बनी और इसके हाई ब्रेक होने पे आपने बाई किया, लेट से 27 पे, तो 27 पे अगर आपने बाई किया, ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रैटेजी हमने अभी तक एग्जिट नहीं किया है बिकॉज ये अभी भी 60 के ऊपर है। ओके, और अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं तो मे बी यू कैन एग्जिट बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट, बिकॉज ओवरनाइट ऑप्शंस की पोजीशन को लेके जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बिकॉज अगर मार्केट लेट से ये स्टॉक गैप डाउन खुल गया नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, तो आपके ऑप्शंस की वैल्यू भी गैप डाउन हो जाएगी। ओके, सो दैट कुड बी अ बिट रिस्की। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बिफोर 3:30 मार्केट क्लोज होने से पहले यू सेल दिस। इवन आपका प्रॉफिट भी हो रहा है तो आप इसको सेल कर सकते हो, और अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स हैं तो आप पार्शली प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओके, बट मैंने क्या किया, मैंने जल्दी एग्जिट कर दिया, एंड दिस इज़ वन
लेसन ऑल्सो विच यू कैन टेक फ्रॉम दिस ट्रेड कि हाउ टू हैंडल अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, सो मैंने यहाँ पे आई थिंक 36 पे इस कैंडल पे एग्जिट कर दिया। सो आई केप्ट ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस, और जो कैंडल बन रही थी उसके लो पे आई वॉज कीपिंग दिस स्टॉप लॉस। तो आई थिंक ये वाली कैंडल बनी, ये आप देख सकते हो छोटी सी ग्रीन कैंडल, इसका लो था 36.05। ओके, और ये इसका जो रेड कैंडल है इसका लो है 36.4, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो 37 के लेवल के बीच में मैंने स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करके वहाँ रख दिया था, और ये जब कैंडल बनी तो वो सेल हो गया। ओके, सो आई कुड हैव अवॉइडेड दैट, और अगर मैं इसको होल्ड करता तो द प्रॉफिट वुड हैव बीन डबल। अभी जितना प्रॉफिट मुझे हुआ, तो अगर मैं इसको यहाँ पे जाके सेल करता एट द लास्ट कैंडल तो प्रॉफिट वुड हैव बीन डबल। ओके, बट एनीवेज ये भी एक डिसेंट प्रॉफिट था, एंड इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप ऑप्शंस बाइंग कर सकते हो। अगेन, इफ़ यू आर कम्प्लीटली न्यू देन प्लीज़ अवॉइड ट्रेडिंग जस्ट बाई वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो इन ऑप्शंस बाइंग, आपने थोड़ा बहुत कर रखा है, देन इस स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो, एंड देन यू कैन डू दिस विद योर ओन रिस्क मैनेजमेंट। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड अगर आपके दिमाग में कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।